بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق کا عنوان تشکیل پاکستان، مصنف کا نام میاں بشیر احمد، پیدائش 1893، وفات 1971، آکسفورڈ یونیورسٹی سے بیرسٹری یعنی قانون کا امتحان پاس کیا۔ آپ نے ہمایوں رسالے کا اجرا کیا۔ آپ پنجاب مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے صدر بھی رہے۔ آپ قائد اعظم کے قریبی ساتھی بھی تھے۔ 23 مارچ 1940 کے تاریخی جلسے میں ان کی یہ نظم پڑھی گئی: ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کے سامنے صفحہ نمبر 6 کے 2 پیراگراف ہیں۔ ان 2 پیراگراف میں جو باتیں بتائی گئیں اب ہم ان پر بات کرتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی حکومت جو تھی وہ کہنے میں یعنی نام کے طور پر تو اورنگزیب کی وفات یعنی 1707 کے 150 سال تک قائم رہی۔ 1707 میں 150 جمع کریں تو 1857، یعنی ہندوستان میں اسلامی حکومت جو تھی وہ اورنگزیب کی وفات تک تو بڑی شان و شوکت سے رہی، لیکن اس کی وفات کے بعد 150 سال تک وہ بس نام کی ہی حکومت تھی، وہ کام کی حکومت نہیں تھی۔ حکومت کی جو طاقت تھی وہ 18ویں صدی کے وسط تک ختم ہو چکی تھی۔ 18ویں صدی کا وسط یعنی 1750 سے لے کے 1760 میں حکومت کی طاقت، عمرہ کی طاقت وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کا وہ روب، اس کا وہ دبدبہ، اس کی وہ شان نہیں رہی تھی جو اورنگزیب کے عہد حکومت میں تھی۔ جب 19ویں صدی شروع ہوئی تو مسلمانوں کا سیاسی تنزل جو تھا اس کی تکمیل ہو گئی۔ جیسے 1803 میں انگریز جو تھے وہ دلی داخل ہوئے، تو آپ کو ایم سی کیوز بھی آ سکتا ہے کہ اورنگزیب کی وفات کب ہوئی؟ یہ 1707 میں ہوئی۔ انگریز دلی کب آیا؟ انگریز دلی 1803 میں آیا۔ تو اب جب مسلمانوں کا سیاسی تنزل چل رہا تھا تو بعض شخصیات ایسی آئیں کہ جنہوں نے مذہبی احیاء یعنی مذہبی علوم کو زندگی دینے کی کوشش کی اور معاشرتی اصلاح کرنے کی کوشش کی، جن میں شاہ ولی اللہ اور ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز شامل ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے کوشش کی اور شاہ عبد العزیز ان کے بیٹے نے کوشش کی، جس سے مسلمانوں میں مذہب سے متعلق واقفیت بڑھی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ عوام کی حالت، مذہبی حالت بھی گری ہوئی تھی اور معاشرتی طور پر بھی مسلمانوں کی اور ہندوؤں کی جو رسمیں تھیں اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں رہ گیا تھا۔ اسی سیاسی تنزل کے ماحول میں، اسی معاشرتی تخریب یعنی معاشرتی خرابی کے وقت میں ایک مخلص اور مصلح یعنی اصلاح کار سید احمد بریلوی پیدا ہوئے۔ سید احمد بریلوی جو تھے انہوں نے 1831 سے لے کر 1816 سے لے کر 1831 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ سید احمد بریلوی نے 1816 سے لے کر 1871 تک 15 سال مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی۔ 1826 میں انہوں نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا اور اس میں 7,000 مجاہدین تھے اور انہوں نے پشاور کے قریب کامیابی حاصل کی۔ 1826 میں سید احمد بریلوی نے سکھوں کے خلاف جہاد کیا، ان کے پاس 7,000 مجاہدین تھے، پشاور کے قریب اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت بخشی اور انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ سید احمد بریلوی جو تھے اب وہ یہ چاہتے تھے کہ اپنے قبائل کی معاشرتی اصلاح کریں
चुनाचे उन्होंने अपने कबाइल की माशरती इस्लाह के अहकाम जारी किए, लेकिन हुआ ये कि सरदारों ने गद्दारी की, जिसकी वजह से सैयद अहमद शहीद जो हैं वो 6 मई 1831 को बालाकोट के मुकाम पर शहीद हो गए। तो सैयद अहमद बरेलवी जो हैं या सैयद अहमद जो हैं ये 6 मई 1831 को बालाकोट में शहीद हुए। वजह क्या थी? वजह कुछ सरदारों की गद्दारी थी, जिनकी वजह से शिकस्त हुई और ये शहीद हुए। इसी दौरान बिहार यानी बंगाल में एक फराइजी तहरीक उठी। फराइजी तहरीक के जो बानी थे वो हाजी शरीयतुल्लाह थे। तो फराइजी तहरीक जो थी वो मुसलमानों के फराइज यानी नमाज, रोजा, ज़कात, हज की तहरीक थी। और इसके साथ ही साथ फराइजी तहरीक का मकसद ये था कि वो जो गरीब मुसलमान हैं उनकी इस्लाह भी की जाए और उनकी इमदाद भी की जाए। तो एक बिहार में एक तहरीक उठी, तहरीक का नाम फराइजी तहरीक था और फराइजी तहरीक हाजी शरीयतुल्लाह ने चलाई। इसका मकसद था कि गरीब मुसलमानों की इस्लाह की जाए और उनकी इमदाद की जाए। बच्चों ये सफ़ा नंबर 6 का आखिरी पैराग्राफ है और इम्तिहानी नुक्ता निगाह से तशरीह के हवाले से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आए अब इस पैराग्राफ पर हम बातचीत करते हैं। 1857 में मुसलमानों की वो जो रही सही इज्जत थी, वो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी, वो भी खत्म हो गई। 1857 में क्या हुआ कि हिंदुओं ने और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ जंग लड़ी, जिसे जंगे आज़ादी 1857 कहते हैं। तो मुसलमान तो पहले ही अपनी शान शौकत खो चुके थे, अब वो जो थोड़ी बहुत इज्जत थी वो भी मिट्टी में मिल गई, वो भी खत्म हो गई और मुसलमान जो थे वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल गुलाम हो गए। अंग्रेजी हुकूमत 100 साल से उनकी जिल्लत के दर पे थी, यानी अंग्रेज जो थे वो तकरीबन 100 साल से मुसलमानों के पीछे पड़े हुए थे। यानी 1857 से 100 साल पहले अगर चले जाएं तो ये 1757 बनते हैं। तो चूंकि मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रहे थे, लिहाजा अंग्रेजों का पहला निशाना मुसलमान ही थे। वो मुसलमानों की हाकमियत खत्म करना चाहते थे और इसके लिए उनकी कोशिशें जो थी वो बहुत देर से जारी थी। चुनाचे 1857 से 100 साल अगर हम पहले चले जाएं तो 100 साल पहले बंगाल में सराजुद्दौला को शिकस्त हुई। 1799 में मैसूर में टीपू सुल्तान को शिकस्त हुई और 1803 में अंग्रेज दिल्ली आ गया और फिर देखते ही देखते जो अंग्रेज थे वो सारे हिंदुस्तान पर छा गए। अब अंग्रेज जो थे उन्होंने इंतकामी कार्रवाई की और उन्होंने मुसलमानों को अपना निशाना बनाया। चुनाचे मुसलमानों की जमीनें उनके पास नहीं रहने दी गई, उनकी जमीनें उनसे छीनी गई। मुसलमानों के वो जो ओहदे थे वो उनके पास नहीं रहने दिए गए और मुसलमानों से उनके ओहदे भी छीन लिए गए। इस्लामी तालीम के ज़राए यानी उस दौर के वो जो इस्लामी मदारिस थे जहाँ पर इस्लामी तालीम दी जाती थी, मुसलमानों का बर्रे सगीर का इस्लामी तालीम का निज़ाम बहुत ही ज़्यादा मजबूत था, लेकिन अंग्रेज़ों ने उस मजबूत निज़ाम तालीम को, इस्लामी निज़ाम तालीम को एक गहरी चोट पहुंचाई और मुसलमानों के जो तालीमी इदारे थे, मुसलमानों के जो मदारिस थे, उनको ख़त्म कर दिया गया, उनकी तौहीन की गई। 1837 में मुसलमानों को एक और चोट पहुंचाई गई, एक और दुख दिया गया और 1837 में फारसी जुबान को अदालतों से खारिज कर दिया गया। ये भी मुसलमानों के लिए गहरे सदमे वाली बात थी कि उनकी जुबान फारसी को अदालतों से निकाल दिया गया। 1857 के बाद मुसलमानों पर अंग्रेजों का आताब, उनका गुस्सा बढ़ता ही चला गया। तो एक तरफ अंग्रेज थे, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा मुसलमानों पर था और बहुत ज्यादा उन्होंने इंतकामी कार्रवाई मुसलमानों के साथ की। लॉर्ड रॉबर्ट कहते हैं कि मेरा गुजर दिल्ली के चांदनी चौक से हुआ
تو हर जानिब लाशों के अंबार थे। यानी 1857 के बाद मुसलमानों के का खूब खून बहाया गया, खूब कत्लेआम किया गया, खूब लूट मार मचाई गई अंग्रेजों की तरफ से, और रही सही कसर जो थी वो हिंदुओं की बेरुखी ने पूरी कर दी। उन्होंने मुसलमानों पर नमक छिड़का, उनके दुख में और इजाफा किया। इन हालात में, इस मुश्किल दौर में एक दूर अंदेश और एक हमदर्द उठा, और ये दूर अंदेश और ये हमदर्द ये सर सैयद अहमद खान थे। मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आंखें खुल गईं। ये अल्लामा इकबाल की नज़म खिजर राह के का एक मिसरा है। मुल्क हाथों से गया, मिल्लत की आंखें खुल गई। यानी मुल्क तो हाथों से गया, लेकिन मिल्लत ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर हमने इतना नुकसान क्यों उठाया, आखिर हम महकूम क्यों हुए। ये एक सोच जो थी ये मिल्लत में पैदा हुई। सफा नंबर 7 में ये पैराग्राफ है और इसमें जो बातें बताई गई, आए अब हम उन पर बातचीत करते हैं। सर सैयद अहमद खान जो थे वो ये बता रहे थे मुसलमानों को कि उनकी जो कदामत पसंद सोच है, वो जो उनके पुराने ख्यालात हैं, अब उसको खत्म करना होगा। हमें हमें नए अलूम सीखने होंगे, हमें नई राहें तलाश करनी होंगी, और साथ ही साथ वो जो हुकूमत है, जो नई हुकूमत है, हुकूमत बरतानिया की हुकूमत है, हमें अब उससे ताबन करना होगा। सर सैयद ने एक रसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया और उन्होंने बताया कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अकल के मुताबिक है। सर सैयद एक तालीमी इस्लाहकार थे। उनकी तालीमी मसाई, तालीमी कोशिशें तकमील को पहुंची, और क्या हुआ जनाब कि 1877 को अलीगढ़ कॉलेज बन गया। ये जो अलीगढ़ कॉलेज था, ये 30 बरस तक मुसलमानों का मरकज बना रहा। यानी 77 में अगर 30 जमा करें 1907, यानी 1906 में फिर मुस्लिम लीग बन गई और उसने फिर तहरीक शुरू की, उसने मैदान संभाल लिया। तहरीक अलीगढ़ में जो कॉलेज बना, उसने बहुत ज्यादा जो है वो रहनुमा पैदा किए। तो ये तहरीक अलीगढ़ जो था, इसकी खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। इससे हमें बहुत से लीडर मिले, इससे हमें बहुत से रहबर मिले। 1884 में सर सैयद पंजाब आए। एमसीक्यूज आ सकता है कि सर सैयद पंजाब कब आए? 1884 में। अलीगढ़ कॉलेज कब बना? 1877 में बना। तो सर सैयद जब पंजाब आए तो जिंदा दिलाने पंजाब सर सैयद की मनादी पर, उनके ऐलान पर दौड़ पड़े। सर सैयद जो थे उनका बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया गया, उनकी बातों को माना गया, उनकी बातों को अहमियत दी गई। तो जैसा कोई प्यासा पानी पे आता है, ऐसे मुसलमानों ने, पंजाब के मुसलमानों ने सर सैयद की आवाज पर लब्बैक कहा। सर सैयद ने अंजुमन हमायत इस्लाम का इदारा लाहौर में कायम किया। उन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में कायम की गई। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का काम चंदा इकट्ठा करके तालीमी इदारे बनाना था। और फिर 1867 में बनारस में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, और हिंदू जो थे वो ये चाहते थे उर्दू जुबान को खत्म कर दिया जाए और मुल्क में भाषा जुबान राइज की जाए। सर सैयद ये कहते हैं कि मुझे यकीन हो गया कि अब ये दोनों कौमें इकट्ठी नहीं चल सकती। 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ, ये भी एमसीक्यूज बहुत अहम है। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब हुआ? 1867 में। किस शहर में हुआ? बनारस में। और सर सैयद कहते हैं कि इससे मुझे पता लग गया, मैं पहचान गया कि हिंदू और मुसलमान अब ये इकट्ठे नहीं रह सकते, अब ये कभी भी किसी भी काम में दिल से शरीक नहीं हो सकेंगे। तो बच्चों ये एक और इम्पोर्टेंट पैराग्राफ आया है, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। 1885 में कांग्रेस की बिना पड़ी, यानी बुनियाद पड़ी। तो कांग्रेस जो थी उसको एक अंग्रेज A.O. ह्यूम ने बनाया, और 1885 में कांग्रेस को बनाया गया, इसको अंग्रेज ने बनाया। और इसका मकसद ये था कि हिंदुस्तानियों के मसाइल उनसे पूछे जाएं और उनका हल निकाला जाए। सर सैयद अहमद खान जो थे, उन्होंने मुसलमानों को सियासत में जाने से रोका, उन्होंने मुसलमानों को कांग्रेस में जाने से भी रोका। और उनकी दूरंदेशी ये देख रही थी कि मुसलमान अगर कांग्रेस में गए तो मुसलमान नुकसान उठाएंगे। सर सैयद ने यह बताया कि जो जमहूरी तरीका है
یعنی مخلوط انتخابات یہ مسلمانوں کے لیے موضوع نہیں ہے. مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات بہتر ہے. مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخابات ہونے چاہیے. یہ جو طریقہ انتخابات ہے، جمہوری طریقہ انتخابات، مخلوط انتخابات، اس سے مسلمان ہمیشہ شکست اٹھائیں گے. مسلمانوں کے لیے ہندوستان میں جداگانہ انتخابات ہونے چاہیے. ان کے لیے علیحدہ نشستوں کا کوٹا مقرر ہونا چاہیے. تو یہ جمہوری طریقہ جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہ مناسب نہیں. ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سر سید جو تھے وہ انگریزوں کو خوش نہیں کرنا چاہتے تھے، بلکہ سر سید جو تھے وہ مسلمانوں کی بہتری چاہتے تھے. اور سر سید احمد خان نے ایک تصنیف لکھی اور اس تصنیف کا نام تھا اسباب بغاوت ہند. اسباب بغاوت ہند لکھ کر سر سید نے انگریزوں کو یہ احساس دلایا اتنی بڑی بغاوت ہوئی، غدر ہوئی 1857 کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانیوں کو سیاسی کونسلوں میں شامل نہیں کیا گیا، ہندوستانیوں سے کبھی بھی مشاورت نہیں کی گئی، ہندوستانیوں سے کبھی بھی رائے نہیں لی گئی. چنانچہ 1857 میں ایک بغاوت ہوئی. اگر انگریز یہاں پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو اسے سیاسی کونسلیں بنانی چاہیے، اسے ہندوستانیوں سے مشاورت کرنے چاہیے، اسے مسلمانوں کی رائے کو اہمیت دینی چاہیے. چنانچہ 1878 میں سر سید کو ہی اس کونسل کا ممبر بنا دیا گیا. 1898 میں سر سید نے انتقال کیا. سر سید جو تھے وہ تو خود دستے اجل کے اسیر ہو گئے، وہ تو خود موت کی آغوش میں سو گئے. لیکن قوم جو تھی وہ ان کی تعلیمی اصلاحات کی وجہ سے ایک گہری نیند سے بیدار ہو چکی تھی.